Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new prose of class 4 from unit number 5, and the name of the prose is Helen Keller. Helen Keller. Helen Keller का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के एलबामा प्रदेश में हुआ था। वो जब 19 महीने की हुई तब उन्हें तेज बुखार हुआ, जिसके चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई और सुनने का क्षमता भी खत्म हो गया। बचपन में वो जब भी अपने विचारों को प्रकट करना चाहती थी वो प्रकट नहीं कर पाती थी, ना ही वो दूसरों के विचारों को समझ पाती थी, क्योंकि उनमें देखने की और सुनने की क्षमता नहीं था, जिसके कारण वो बचपन में बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, रोती रहती थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी। एक दिन हेलन केलर के जीवन में एक टीचर का प्रवेश हुआ। उनका नाम था मिस सुलिवन। मिस सुलिवन ने हेलन केलर को साइन लैंग्वेज सिखाया, जिसके कारण हेलन केलर अपने विचारों को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा पाई और उनकी ज़िंदगी मिस सुलिवन के वजह से बहुत ज़्यादा बदल गया। इस प्रोज में, इस कहानी में हम हेलन केलर और उनके टीचर मिस सुलिवन के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। हेलन केलर का ये मानना है कि शारीरिक रूप से विकलांग होना आपकी विकास के मार्ग में कभी भी बाधा या विघ्न उत्पत्ति नहीं करता, बल्कि अगर आप अपने काम के प्रति कम ध्यान देते हो या आप अपने काम के प्रति ज़्यादा निराश होते हो तो आप अपने विकास के मार्ग में खुद ही बाधा उत्पन्न करते हैं। तो चलिए इस टीचर और स्टूडेंट यानी मिस सुलिवन और हेलन केलर के ये ब्यूटीफुल स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप के बारे में इस स्टोरी के थ्रू हम लर्न करेंगे। हेलन केलर। It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day, the baby became ill, and day after day, her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." Helen lived, but she was not the same after her illness. "Something is very wrong," her mother said. At last they found what was wrong. The child could not see or hear. She was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. "Helen is very smart," she said, and added, "The problem is how we can reach her. She is locked up inside herself." Helen began to grow wild. She could not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. D-O-L-L spells doll. She spelt the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelt D-O-L-L too. But she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelt a lot of words for Helen on her hand.
day and night to make Helen understand. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. 1880 के समर यानी गर्मियों के मौसम में एक बेबी गर्ल पैदा हुई थी, एक बिटिया पैदा हुई थी, एक छोटे से टाउन में. कौन से टाउन में? एलाबामा में. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उस बेटी के माता पिता उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. Loved her dearly. और उस बेटी को उन्होंने नाम दिया हेलन केलर. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. परंतु एक दिन ऐसा आया कि उस बेटी को क्या हुआ? बीमारी हुई, वो इल हो गई. कौन सा इलनेस आया उसे? उसको बुखार आया. और बुखार भी ऐसा आया कि दिन भर दिन जो बुखार का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता ही रहा. बुखार कमने का नाम ही नहीं ले रहा था. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say that there is nothing more we can do. The baby may not live. जो कोई हेलन केलर के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, उनके पेरेंट्स और जो कोई भी रिश्तेदार थे, वो चाहते थे कि हेलन केलर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. उन्होंने हेलन केलर को ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया अपनाया, लेकिन अंत में उन सभी को यही लगा कि देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव. उन्हें ये लगा हम जितना भी कोशिश करें, इस लड़की का बुखार एकदम तेज़ बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं रहा है. और उन्हें लास्ट में यह महसूस हुआ कि शायद ये बेटी और जिंदा नहीं रहेगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी. शी मे नॉट लिव. हेलन लिव्ड, but she was not the same after illness. Helen lived, but she was not the same after her illness. जैसे तैसे तो हेलन जिंदा तो बच गई, बुखार से वो बाहर तो निकल गई, लेकिन इस बीमारी होने के बाद हेलन में कुछ चेंजेस दिखाई दिए. इस बीमारी के बाद हेलन वो सेम हेलन नहीं थी, उनमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए. तो क्या थे वो चेंजेस? Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. ये जो चेंजेस दिखाई दे रहे थे हेलन के बिहेवियर में, उनके माँ को भी ये अंदाज़ा हो रहा था. उनके माँ ने कहा समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गलत हुआ है मेरी बेटी के साथ. एट लास्ट क्या गलत हुआ है उन्हें पता चला. तो उनके बारे में हेलन केलर में क्या क्या चेंजेस हुआ फीवर के बाद उनके माँ को पता चला. तो देखते चलो क्या होता है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. उस हेलन केलर का क्या चला गया था? सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों खत्म हो गए थे. अभी हेलन केलर को ना ही दिखाई दे रहा था, ना ही सुनाई दे रहा था. फीवर के बाद उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता चला गया था. किंतु हेलन केलर वॉज अ ब्राइट गर्ल. शी वॉज अ ब्राइट गर्ल, यानी बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों को ये लगा क्योंकि हेलन को ना ही देखने की शक्ति है, ना ही सुनने की क्षमता है, तो वो कुछ किसी से सीख नहीं पाएगी, वो ज़िंदगी भर ऐसे ही दुख में तड़पेगी. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said. लेकिन उनकी माँ को इन बातों पे कोई विश्वास नहीं था. उनकी माँ ये मानती थी कि हेलन एक बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की थी और हेलन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी, यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को समझ लेती थी. उनके बाद उन्होंने ये भी बोला एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ वी कैन रीच हर. शी इज़ लॉक्ड इनसाइड हर सेल्फ. हेलन की माता ने ये बोला
कि हम नॉर्मल लोगों से तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जैसे हेलेन के जैसे फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, जिसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, इन लोगों से भी कुछ लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कम्युनिकेट करना है हेलेन के साथ, उसका ज्ञान हमें नहीं है। हेलेन एक स्मार्ट गर्ल है, लेकिन हम उससे कैसे कम्युनिकेट करें, उससे कैसे अपने बातों को पहुंचाएं, ये ज्ञान हमें नहीं है। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। हेलेन खुद के अंदर घुट रही है। क्यों? वो अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, उसीलिए उसको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इससे कम्युनिकेट कर सके, इसको समझ सके। हेलेन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड। दिन भर दिन हेलेन एकदम वाइल्ड होते गई। वाइल्ड मतलब एकदम गुस्से में रहती थी, एकदम चिड़चिड़ा होकर रहती थी, इरिटेटेड रहती थी। क्यों? क्योंकि ना ही उसको दिखाई देता था, सुनाई देता था, और वो अपने इमोशंस को, अपने बातों को दूसरों को बता नहीं पा रही थी। इसके कारण वो हमेशा एकदम वाइल्ड बिहेवियर, मतलब गुस्से में रहती थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कोम्ब हर हेयर। वो अपने बालों को भी किसी को छूने नहीं देती थी कंघी करने के लिए। एकदम बिखरे बिखरे होते थे उसके बाल बचपन में। हर क्लॉथ्स वेर ऑलवेज डर्टी। और हेलेन के कपड़े भी हमेशा बचपन में गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वो हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी ऐसे भी होता था कि वो ज़मीन पे बैठ जाती थी और अपने ज़मीन पे बैठने के बाद वो अपने पैरों को किक करती थी, अपने पैरों को मारती थी। शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर। तो उनके पेरेंट्स को लगा, हेलेन केलर के पेरेंट्स को लगा कि अभी टाइम आ गया है कि हेलेन केलर को एक अच्छा टीचर ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये मामूली लोगों के साथ तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फिज़िकली चैलेंज लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इनके पेरेंट्स को कोई ज्ञान नहीं था। तो वो अभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हेलेन के लिए एक टीचर ढूंढना है। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी, हमेशा अकेले में रहती थी, ज़मीन पे बैठ के अपने पैर को मारती थी और दुखी रहती थी, ना ही किसी को कंघी करने के लिए देती थी अपने बालों को। तो ये सारे हरकतों के देख के उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि एक अच्छे टीचर को ढूंढना चाहिए जो हेलेन के इमोशंस को समझ सके और उसको भी कुछ सिखा सके। Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. आखिर में उनको एक बहुत ही यंग टीचर, एक जवान शिक्षक मिल गई जिनका नाम था मिस सुलिवान। मिस सुलिवान ने ये प्रॉमिस किया कि वो हेलेन को हेल्प करेगी दुनिया के बारे में जानने के लिए, वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। Miss Sullivan gave Helen a doll. D-O-L-L spells doll. तो पहली बार जब मिस सुलिवान हेलेन से मिलती है तो वो हेलेन को एक डॉल देती है और साइन लैंग्वेज से वो बोलती है कि डॉल D-O-L-L स्पेल करता है। ऐसे मिस सुलिवान ने पहली बार हेलेन को डॉल स्पेल करना सिखाया। Doll, D-O-L-L spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. तो ये एक साइन लैंग्वेज है। तो साइन लैंग्वेज से उन्होंने D-O-L-L, साइन लैंग्वेज अलग लैंग्वेज होता है, वो फिंगर्स के कुछ एक्सप्रेशन से अल्फ़ाबेट्स बनते हैं साइन लैंग्वेज में। तो उन्होंने अपने फिंगर्स के हेल्प से D-O-L-L साइन लैंग्वेज से लिखा और बोला कि डॉल ऐसे स्पेल करता है, और हेलेन के हाथ में एक डॉल भी पकड़ा दिया। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस। तो जो भी लेटर्स थे D-O-L-L डॉल, उसके स्पेशल हैंड साइंस होते हैं,
उस स्पेशल हैंड साइंस के यूज़ करते हुए, फिंगर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने हेलन के हैंड पे डॉल लिखा और उन्होंने हेलन के हाथ में डॉल भी दिया ताकि वो समझ पाए कि ये जो चीज़ उन्होंने हाथ में पकड़ा है उसको आखिर में डॉल बोला जाता है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। हेलन काफ़ी ही ज़्यादा ब्राइट थी, इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली अपने टीचर से कॉपी कर दिया और उन्होंने भी हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए, हैंड साइन का इस्तेमाल करते हुए इमीडिएटली DOLL उन्होंने भी अपने हैंड साइन से स्पेल किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, क्योंकि ये पहली बार वो कुछ सीख रही थी अपने टीचर मिस सुलिवान से। वो कुछ कर तो रही थी, मिस सुलिवान से कुछ सीख तो रही थी, पर हेलन केलर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी टीचर उससे क्या करवाना चाहते थे। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान, शी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड। हेलन मिस सुलिवान को पसंद करने लगी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव की थी। मिस सुलिवान जब भी कुछ सिखाती थी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान थी। She was strict and kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. तो मिस सुलिवान क्या करती थी, साइन लैंग्वेज के यूज़ से, फिंगर्स के यूज़ से, हैंड मूवमेंट्स के यूज़ से उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल करना सिखाया हेलन केलर को। और वो दिन रात यही करती थी ताकि अगर बचपन में हमें क्या सिखाया जाता है, वर्ड सिखाया जाता है। वर्ड सीखने के बाद ही हम सेंटेंसेस सीखते हैं। तो हेलन केलर को मिस सुलिवान हर एक वर्ड सिखाती थी कि ये जो चीज़ है ये डॉल है, ये जो चीज़ है ये इरेज़र है, ये जो चीज़ है ये वाटर बॉटल है। तो हर एक चीज़ पकड़ाती थी हेलन के हाथ पे और उस चीज़ को पकड़ाने के बाद कुछ हैंड साइंस के यूज़ करके उसको समझाती थी कि ये इसको वाटर बॉटल बोला जाता है, ये फिंगर से ऐसे स्पेल किया जाता है। तो दिन रात उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स सिखा दिए, जैसे कि वाटर बॉटल हो गया, बुक, पेंसिल, रबर, स्टिक, बैंगल। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारा वर्ड्स हेलन को सिखा दिया। नाउ लेट अस लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोज इन डिटेल। One day, her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled WATER. Suddenly, Helen understood that WATER, water, meant something wet running over her hand. She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. तो क्या होता है? One day her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन उनकी टीचर मिस सुलिवान ने हेलन के हाथ को लेते हुए बहते हुए पानी में डाल दिया। बहते हुए रनिंग वाटर में हेलन के हाथ को लेते हुए उन्होंने डुबाया। Then she spelled WATER. फिर मिस सुलिवान हैंड्स और फिंगर्स के मदद से, साइन लैंग्वेज से उन्होंने स्पेल किया वाटर, WATER. Suddenly, Helen understood that water meant something wet running over her hand. तो इमीडिएटली हेलन को ये समझ में आ गया वाटर का मतलब कुछ गीला चीज़ होता है, समथिंग वेट जो उसके हाथ के ऊपर से बह रहा है। तो शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद से, ये इंसिडेंट के बाद से हेलन को ये समझ में आ गया कि पूरे दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वर्ड्स हैं, क्योंकि वर्ड्स को यूज़ करके ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो उनको पता चल गया कि जो पानी में उन्होंने हाथ डाला और उनको जब साइन लैंग्वेज से सिखाया गया वाटर, तो कुछ गीला चीज़ होता है तो उसका मतलब वाटर होता है। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स सीखा और ये समझ में आया कि दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वर्ड सीखना।
वर्ड्स would tell her everything she wanted to know. वर्ड से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि कौन सा चीज़ क्या है, यही बेसिक्स होते हैं. तो so now let us learn some of the new words which we came across while learning this prose. Dearly, affectionately. Dearly का मतलब affectionately, लाड से. आपके कोई नज़दीकी होता है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, भाई बहन, वो आपके क्या होते हैं, डियरली होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं. डियरली, एफेक्शनेटली. इलनेस, सिकनेस, बीमारी, अ डिजीज़ और पीरियड ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड. इलनेस का मतलब होता है बीमारी, सिकनेस, या ए डिजीज़ और पीरियड ऑफ सिकनेस, कोई बीमारी या किसी बीमारी का एक पीरियड जो हमारे बॉडी को भी अफेक्ट करता है, माइंड को भी अफेक्ट करता है, या कभी कभी बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करता है. तो इलनेस, सिकनेस या तो बीमारी, अ डिजीज़ और पीरियड ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड. अग्रीड, एक्सेप्टेड, सहमति देना. एग्रीड का मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, सहमत हो जाना किसी चीज़ से. इम्पॉर्टेंस, ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस और वैल्यू. इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, सिग्निफिकेंस देते हो. जैसे हेलन ने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया, क्योंकि वर्ड्स के बिना हम दुनिया को जान ही नहीं सकेंगे. वर्ड्स जो बेसिक्स है उसको जानना इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोज. Helen Keller. Learn this prose, enjoy this prose, and if you have any queries related to this prose, write down your queries in the comment section to be answered. If you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest educational content. And if you get any value from this particular video, please like and share it to the maximum. Until then, take care and thank you.